So students, let us take few more examples, all right, and then we'll get into application of derivatives, right? So today we are going to study, we'll take first some examples of derivatives and especially the chain rule, and then we'll discuss the double differentiation, and then we'll discuss application of derivatives, the first application, that is the rate measure, all right, and then in the next lecture we'll discuss the maximum and minimum. That will be the last lecture for derivatives. Alright, so still two lectures, today's and the next. Alright, so let us start. Let us take the first example here. So the first example here is y is equal to 4e raised to x square minus 2x. Okay, this is the question. We have to find out its derivative. We have to find out dy by dx. Alright, so let us start. So this is what we have to find out. Okay, so let us start solving. So we know that if we have the function y equal to e raised to x, then its derivative is e raised to x, right? That's all. But you know, here we have e raised to something, right, which is not x, which is x square raised to minus 2x. So what we will do is we will convert this into known form, that is let x square minus 2x is equal to t, let it be t. So this will become y is equal to 4 e raised to t. So now we have to find out its derivative, that is dy by dx. Alright, so that means we have to find the derivative of 4 e raised to t with respect to x. So we can see that these are two different variables, t and x, right? So we can see that the variables are different, right? So we can see that the variables are different. Okay, so now this will become dy by dx will become, so we will use chain rule, right? We'll first हम लोग ऊपर नीचे वेरिएबल सेम करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 डेरिवेटिव ऑफ 4e raised to t with respect to t into dt by dx, right? This is what is chain rule, that we have introduced a chain, we have introduced one variable, right? So that this derivative, you know, we can find this derivative. Okay, alright, just like यहाँ पे derivative of e raised to x with respect to x is ex. तो अगर ऊपर नीचे वेरिएबल सेम है, then you are writing e raised to x. Okay, तो वैसे ही यहाँ पे जो है, यहाँ पे अभी 4 is a constant which is multiplied to e raised to t, so the multiplied constant is taken outside, तो 4 को हम बाहर ले लेंगे, तो ये 4 हो जाएगा, और e raised t का डेरिवेटिव e raised to t हो जाएगा into dt by dx हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, अब हम t को रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 e raised to x स्क्वायर माइनस 2x हो गया, ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ ये t x स्क्वायर माइनस 2x विथ रिस्पेक्ट टू x. तो फाइनल आंसर क्या आएगा, तो फाइनल आंसर आएगा, ये टर्म तो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी इसका डेरिवेटिव तो हो चुका है, तो 4e x स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव होगा 2x माइनस 2, तो वो हो जाएगा 2x माइनस 2, ठीक है. तो ये इसका आंसर है. तो जैसे मैंने आपको सिखाया था बाकी डेरिवेटिव्स फाइंड करना, उसी तरह से मैंने आपको ये वाला सवाल करना कैसे करना बता दिया है, ठीक है. तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और मैं जो भी सवाल दूँ उसको आप पहले पॉज करिए, पॉज करके आप उसको करने की कोशिश करिए, राइट. यू ट्राई टू सॉल्व इट फर्स्ट. तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एंड देन वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके ओके, ठीक है, चलिए. तो नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so the next question is, we have y is equal to, so you can try this out, y is equal to x square plus 1 raised to half. So we have to find dy by dx. Find what? dy by dx. Alright, so let us start. So we can see that the form which we know is, if y is equal to x raised to n, then its derivative, yeah, as per the power rule, its derivative will be how much? N into x raised to n minus 1,
n into x raised to n minus 1. But this is not x raised to something. This is x square plus 1 raised to something. So what we will do? We will take this as x or t. So we will take, so let x square plus 1 is equal to t. So this we will take as t. So this will become y is equal to t raised to half or t raised to n. Okay. So we have converted this into a known form. एक known form में हमने convert कर लिया. तो अब ये क्या हो जाएगा? अभी हमें फाइंड करना है dy by dx. तो वो हो जाएगा d डेरिवेटिव ऑफ t रेज टू हाफ. अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि ऊपर नीचे जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल सेम नहीं है. ठीक है. तो ये जो वेरिएबल्स हैं ये डिफरेंट है. वेरिएबल्स जब डिफरेंट होते हैं तो हमें चेन रूल यूज करना पड़ता है. देन वी हैव टू यूज चेन रूल. तो यहाँ से हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, तो हमने ये कर लिया डेरिवेटिव ऑफ t रेज टू हाफ. तो विथ रेस्पेक्ट टू t कर देंगे इसको, t इंटू dt बाई dx. तो अब इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. अब ये ऐसा हो गया, ऊपर x नीचे x, ऊपर t नीचे t. ठीक है. तो ये हो जाएगा n इंटू t रेज टू n माइनस 1 इंटू dt बाई dx. तो ये हो जाएगा 1 बाई, तो ये होगा t रेज टू माइनस हाफ, तो नीचे जाके t रेज टू प्लस हाफ यानी रूट t हो जाएगा. तो वो 2 रूट t हो जाएगा इंटू dt बाई dx. ठीक है. ओके. तो ये कैसे हुआ एक बार देख लो. ये हो गया t रेज टू, ये हो गया माइनस हाफ, वो हो गया 1 बाई t रेज टू हाफ, मतलब 1 बाई रूट t. ठीक है. ओके. तो लिख दिया मैंने. अब आप यहाँ पे वैल्यूज डाल दो. तो dy बाई dx हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा. तो वो हो जाएगा 1 बाई 2 रूट t यानी x स्क्वायर प्लस 1. तो 2 रूट x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx. तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 रूट x स्क्वायर प्लस 1 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x. ठीक है. तो ये 2 और 2 आप कैंसिल कर दीजिए. तो फाइनल आंसर वो आ जाएगा x बाई अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1. आई होप आपका भी आंसर यही आया होगा. आपने वीडियो पॉज करके ट्राई किया होगा, तो आपका भी आंसर यही आया होगा, यही आना चाहिए. वेरी गुड. तो इसको नोट डाउन कर लीजिए. Let us take next question. So this practice is very important. Right? तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. राइट. पॉज करके यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए. Now let us take next question. All right. So let us discuss the next question. मैं जैसे ही यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा आप क्या करिए, फिर आप उसको वीडियो को पॉज करिए और फिर उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए. ठीक है. ऑलराइट. और उसके बाद आप देखिए कि मैंने कैसे किया सॉल्व. ओके. So let us take the next question. यहाँ पे है find the derivative of y is equal to sin of x square minus 4. ओके. तो इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो यहाँ पे जो है आप ट्राई करिए. ठीक है. ऑल ऑफ यू पॉज द वीडियो एंड ट्राई. तो यहाँ पे आपको ये पता है कि नॉन फॉर्म कौन सा है. नॉन फॉर्म है sin x का. राइट. अगर y इज इक्वल टू हमारे पास sin x है तो इसका जो डेरिवेटिव होता है dy बाई dx ये होता है cos x. राइट. sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है. तो लेकिन ये नोन फॉर्म में नहीं है, इसको हम नोन फॉर्म में लेकर आएंगे. तो उसके लिए आपको पता है हमें क्या करना होगा, हमें इसको t मानना होगा. तो हम लोग लेंगे लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4. ठीक है. तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन t. अब हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन t विद रिस्पेक्ट टू x. लेकिन आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे जो है वो वेरिएबल डिफरेंट है. राइट. वेरिएबल्स आर डिफरेंट, सेम नहीं है. अब वेरिएबल सेम नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेन रूल यूज करते हैं. राइट. तो चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल कहता है कि पहले ऊपर नीचे वेरिएबल सेम करो. ऊपर वेरिएबल t है, नीचे भी t लेके आओ. लेकिन नीचे t लेके आए हो, ये एक्स्ट्रा है, तो फिर ऊपर इसको आपको डालना पड़ेगा. राइट. न्यूमरेटर. तो ये आपने चेन डाल दिया है. ओके. तो अब ये जो है, जब ये यहाँ पे आप देख रहे हो, जब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x cos x, तो ऊपर x नीचे x तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. तो ऊपर t नीचे t आप कर दो डिफरेंशिएट cos t इंटू dt बाई dx. अब क्या करना है, अब आपको रीसब्स्टिट्यूट करना है. तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, cos ऑफ t क्या है, x स्क्वायर माइनस 4 रीसब्स्टिट्यूट इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 विथ रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ से आपको मिल गया फाइनल आंसर dy बाई dx इज इक्वल टू cos ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 और ये हो जाएगा सिर्फ 2x.
तो ये इसका आंसर है। ओके, तो आई होप आपको भी आंसर आ गया होगा, राइट। आप लोग काफी स्मार्ट हैं और अच्छे से लिख रहे होंगे, कर रहे होंगे, तो और पढ़ रहे होंगे सब लेक्चर्स, तो अभी आपको आना चाहिए, ठीक है। लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है अपने पास वो है, लेते हैं चलो। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। आपको समझ में आया चेन रूल कैसे यूज करते हैं, राइट, हाउ डू वी यूज चेन रूल, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ दिया है y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड dy बाय dx, ठीक है। तो इस तरह से, ओके। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो ये इस तरह से, ये है cos x का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर x मतलब क्या होता है, वो होता है cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मेरे पास इस तरह से है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, उसका डेरिवेटिव होगा 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1, मतलब 2x, ठीक है। बट यहाँ पे समथिंग रेज टू स्क्वायर है, तो उस समथिंग को मैं t मान लूंगा, तो लेट t इज इक्वल टू कॉस एक्स। ओके, तो मेरे पास फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, क्योंकि इसको मैंने t मान लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे फाइंड करना है क्या, dy बाई dx, तो वो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फिर से वही प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, वेरिएबल्स आर डिफरेंट। हम देख सकते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं ऊपर नीचे वो अलग है। तो ये हो जाएगा यहाँ से, राइट, डेरिवेटिव ऑफ t की जगह आ जाएगा आपका, मतलब t की जगह कुछ नहीं आएगा, आपको ये चेन रूल लगाना है, तो ऊपर नीचे वेरिएबल सेम करना है, इंटू dt बाई dx, ठीक है। तो अगर ऊपर ये आप देख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो 2x होता है ना, ऊपर x नीचे x 2x, ऊपर t नीचे t, तो 2t, तो 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 2, राइट। और t का वैल्यू डाल दो आप, वो है cos x, यहां भी डाल दो t का वैल्यू cos x। तो अब आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा फाइनल जो dy बाई डी एक्स है, हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना था, वो आ जाएगा 2 cos x। तो 2 cos x, और ये इसका cos x का डेरिवेटिव होता है, क्या होता है, याद किया आप लोगों ने, याद किया कि नहीं किया, याद करो उसको, तो वो होता है माइनस साइन एक्स, तो वो होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस 2 cos x साइन एक्स, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो आप देखेंगे कहीं कहीं पे ये भी लिखा रहता है आंसर जो है वो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, तो कहीं कहीं पे आप देखोगे इसको माइनस 2 sin x, सॉरी माइनस sin 2x भी लिखा रहता है, माइनस sin 2x, इस तरह से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, मैं आपको ये नोट डाउन कर लो, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना हमारे लिए, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ओके ओके। आई होप आपने पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लेते हैं हम लोग, जैसे कि cos 2x, तो cos 2x जो है इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। ओके, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये एक फॉर्मूला है, तो इसको हमें क्या करना है, याद कर लेना है। तो अभी यहां पे एक चीज देखना है कि यहां पे जब 2x है, ये क्या है, ये है डबल एंगल, और यहां पे है cos स्क्वायर x, तो यहां पे जो है ये जो एंगल है इसका ये डबल एंगल है, इसका ये क्या है, डबल एंगल, ठीक है। उसका इंपॉर्टेंस क्या बताता हूं मैं आपको। अभी यहां से देखो, यहां से इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं हम, क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, ये 1 को हम उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, ओके। और इस 2 को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कभी कभी हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस में जो है ये cos स्क्वायर एक्स दिया रहता है, तो जो cos स्क्वायर एक्स दिया रहता है तो वो cos स्क्वायर एक्स है, राइट, और उसमें जो पावर है वो 2 है, तो उसको हम लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लीनियर फंक्शन मतलब जहाँ पावर 1 हो, जैसे ये cos 2x है, cos स्क्वायर एक्स है, तो cos स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos 2x/2, उसको ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। तो वैसे ही आप देख लो कि इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, cos ऑफ x, अगर ये सिर्फ x हो, तो जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ पे एंगल है या डबल एंगल है, यानी इधर आधा हाफ एंगल चाहिए, तो ये फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। समझ में आ रहा है? तो बहुत सिंपल है, मतलब यहाँ पे जो भी एंगल है थीटा, उसका 2 थीटा यहाँ चाहिए। यहाँ x/2 है तो यहाँ x, यहाँ x/4 है तो यहाँ x/2, यहाँ x/8 है तो यहाँ x/4, यहाँ जो भी है उसका डबल, यहाँ जो भी है उसका डबल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों एक जैसे ही हो गए, दोनों एक ही है बेसिकली, राइट। दोनों में जो कंसेप्ट है वो एक ही है कि यहाँ जो एंगल है उसका डबल एंगल, यहाँ जो एंगल है, तो ये एक ही हो गए, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फिर से 1 इस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2, फिर 2 को यहाँ ले जाइए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos x/2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x/2। तो अभी ये और ये एक ही हो गए, ये दोनों एक जैसे ही हो गए। समझ में आ रहा है आपको? तो cos स्क्वायर x इज 1 प्लस cos 2x/2। अगर तुमने यहाँ पे एंगल हाफ किया cos स्क्वायर x/2, तो यहाँ भी एंगल हाफ हो जाएगा, 2x की जगह x हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग को बस ये याद रखना है कि इधर डबल एंगल है, उधर एंगल है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि इधर हमने और हाफ कर दिया, इसको cos ऑफ x/2 कर दिया, तो इसका आधा उधर चाहिए, यानी x/4, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/4 - 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से जो भी इधर है उसका आधा उधर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये बन जाएगा 1 प्लस, ठीक है, ये बन जाएगा 1 प्लस cos x/2/2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर, यहाँ पे उसका आधा चाहिए x/4। समझ में? तो इस तरह से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत जगह जो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस यूज करने होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो ट्रांसफॉर्मेशंस करने होते हैं, कहीं कहीं पे, राइट, हमें cos स्क्वायर x को हटा के हमें ये डालना होता है 1 प्लस cos 2x/2, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है, और उससे जो है हमारा वो तो सॉल्व करने ईजी हो जाता, सॉल्व करने में ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिए। अच्छा, यहाँ पे एक और दूसरा फॉर्मूला है इसका, ये है 2 cos स्क्वायर x - 1। यहाँ पे एक और फॉर्मूला है इसका, वो है 1 - 2 sin स्क्वायर x, 1 - 2 sin स्क्वायर x, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है। तो अब हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी इसमें हम लोग ऐसा करेंगे, इसको इधर, हाँ, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहां से तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर एक्स है ये आएगा 1 माइनस cos 2x/2, ठीक है। तो आपने देखा कि cos स्क्वायर एक्स कितना आया था, वो आया था 1 प्लस cos 2x/2, और साइन स्क्वायर एक्स कितना है 1 माइनस cos 2x/2। ओके, तो अब इसी को हम लोग यहाँ पे अगर हमने इसको हाफ कर दिया, cos x कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इधर जो डबल एंगल उधर एंगल, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। फिर हम इसको उधर लेके जाएंगे, cos x को यहाँ लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos x, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2, तो 2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x, ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, यहां से हमको मिल जाएगा साइन स्क्वायर x/2, तो साइन स्क्वायर x/2 मिल जाएगा 1 माइनस cos x/2। मतलब बेसिकली आपको ये फॉर्मूला और पिछला वाला फॉर्मूला याद करना है, और इसको आप खुद ही मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, डबल एंगल है, वहां एंगल है, तो थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए, राइट। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस। मैंने भी इसको कुछ याद नहीं किया हुआ है, राइट, मैंने सिर्फ बेसिक वाला याद किया हुआ है, और इसी से मैं आगे का डिराइव करता हूँ। और एक वो याद किया फॉर्मूला, दूसरा ये याद किया कि यहाँ डबल एंगल होता है, यहाँ जो भी एंगल होता है उसका डबल यहाँ होता है LHS में, ठीक है। बस
और ये हो गया। वैसे ही अगर इसको और हाफ किया हमने, cos x बाई 2 किया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 4, साइन स्क्वायर x बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो वापस ऐसे ही करो आप, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। आप चाहो डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या होगा अगर यहाँ पे ये आपने हाफ कर दिया है, cos x बाई 2 है, होल बाई 2, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाई 4। आप चेक कर लो। ठीक है, ओके, यू कैन जस्ट चेक आउट। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद करिए। इसको पूरा मत याद करिए, इसको बेसिकली ये वाला और इसके पीछे वाला जो मेन फॉर्मूला है, यानी मेन फॉर्मूले कौन से? मेन फॉर्मूले दो हैं वो जो आपको याद करने हैं। जो आपको बहुत फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो वो आपको याद कर लेने। कौन से? तो cos 2x जो है उसका एक फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। समझ में आ रहा है? एक्चुअली इसी से ये सब आ जाते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि हमको पता है कि 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब होता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। तो आप देख लो, ये वाला आ जाएगा इससे, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, फिर आप इसी को कॉस स्क्वायर को लिख दो, कॉस स्क्वायर को लिख दो आप, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। हो गया? ओके, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। मतलब ये वाला भी आ गया, इससे ये वाला भी आ गया। तो आपको बेसिकली ये तीन जो है याद कर लेने कि cos 2x जो होता है वो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये सब याद नहीं है तो पहला तो एटलीस्ट याद कर लो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, और पहला याद हो, दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि बस 2 उधर जाना है और साइन में कन्वर्ट होना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। दूसरा या तीसरा तो भी याद हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो याद कर लो। ठीक है, चलो अच्छा, इसके बाद एक दूसरा जो ये cos 2x का हो गया, अभी sin 2x। तो sin 2x का एक फॉर्मूला है, वो है 2 sin x cos x। तो इसको भी आप याद कर लो। ठीक है, 2 sin x cos x, 2 sin of cos x नहीं, sin of cos of x नहीं है, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ 2 into sin x into cos x। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए, sin 2x। ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग लेते हैं अगला एग्जाम्पल। ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल हियर। तो जो एग्जाम्पल है अपने पास वो है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स क्यूब है और हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, ओके, तो ये सवाल है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक नोन फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट कंपेयरिंग दिस विद अ नोन फॉर्म and we'll try to convert this into known form. All right, that's the basic idea. Okay, so the known form, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू cos x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स। तो इसका डेरिवेटिव होता है डेरिवेटिव ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x। ऊपर नीचे क्या है, वेरिएबल सेम है, ऊपर x नीचे x। तो अगर ऊपर नीचे x है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये होगा माइनस साइन x। ठीक है, अगर ऊपर नीचे वेरिएबल अलग है तो प्रॉब्लम होता है, तो वो यहाँ होने वाला है। तो हम लोग इसको मान लेंगे क्या, t। ठीक है, तो लेट x क्यूब इज इक्वल टू t मान लिया, तो अपने पास y क्या हो गया, y हो गया cos t। तो एक नॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, नॉन फॉर्म मतलब cos x, और ये cos t के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, देखो नॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। राइट, तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ cos t विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ऊपर नीचे वेरिएबल क्या है, अलग है। राइट, वेरिएबल मैंने बार बार लिखा है ताकि आपको वो चीज नोटिस हो कि हम लोग चेन रूल कब यूज करते हैं। ठीक है, व्हेन टू यूज चेन, वेरिएबल्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पे ये जो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ cos t, हमको ऊपर नीचे वेरिएबल सेम करना है, इनटू dt बाई डी एक्स। राइट, आप लोग पॉज करके ट्राई करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते? किया करो, पॉज करके क्वेश्चन ट्राई किया करो। ठीक है, अब ये cos t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन t इंटू डेरिवेटिव ऑफ t का वैल्यू क्या है, x क्यूब। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x।
तो माइनस साइन टी डाल दो, टी है एक्स क्यूब और ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन यानी 3x स्क्वायर। तो आंसर आ गया -3x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये आंसर है। ये मत कर देना कि ये एक्स स्क्वायर को अंदर ले लिया, एक्स रेज टू 5 कर दिया, ऐसा मत करना। ठीक है, तो ये है अगला सवाल, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग लेते हैं यहाँ एक और सवाल। ठीक है, आप इसको लिखिए, नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। ओके, तो जो अगला सवाल है वो ऐसा है, हमें दिया गया है y, हमें यहाँ x और y दिए गए t के टर्म्स में। ठीक है, तो x दिया गया है हमें a इन t रेज टू 4 और y दिया गया है bt क्यूब, ठीक है, bt क्यूब, और हमसे बोला गया है कि फाइंड dy by dx, ये पूछा गया। ठीक है, तो फाइंड dy by dx। ओके, तो आप यहाँ पे देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिजिक्स में काफी यूज होता है आगे के चैप्टर्स में ये वाला कॉन्सेप्ट, तो इसलिए हम ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे जो है बेसिकली हमें फाइंड करना है डी वाई। यहाँ पे देख सकते हैं x इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t, दोनों t के फंक्शंस हैं। ठीक है, और हमें फाइंड करना है dy by dx, हमें फाइंड करना है dy by dx। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं चेन रूल, क्योंकि x इज अ फंक्शन ऑफ t। अभी y और x दोनों t के फंक्शन है, तो हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे dy by dt इंटू dt by dx। ये हमने चेन रूल लगा दिया, ये हमने क्या कर दिया, चेन रूल लगा दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं और थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा देंगे, तो ये हो जाएगा dy by dt, और इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे नीचे, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इनटू dx by dt, ऐसे नो। ठीक है, समझ में, ये ऐसा हो गया ना। हाँ, ठीक है, मतलब कुल मिला के ये हो गया dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt, ऐसा। ठीक है, ओके, आप ऐसे सोच सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो सर ये तो हम ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्टली यहाँ dt dt डिवाइड कर सकते थे, मतलब ऐसा कर लेते सर, आपने इतना मुश्किल हमारे लिए कर दिया, तो हम इससे आसान कर लेते। क्या कर लेते सर, हम कर लेते सर dy by dx है सर, हम कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, हम कहते हैं सर, हम ये कर लेते कि dy by dx और उसको हम कर लेते सर dy by dt और dx by dt, हम ऊपर नीचे dt से डिवाइड कर देते थे, तो भी यही आ जाता। हाँ वही आ जाता, सही बात है, वही किया, लेकिन चेन रूल से मैंने आपको उसको जस्ट कनेक्ट करके बता दिया। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, dy by dt, इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है। b कांस्टेंट है और t क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3t स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब x को t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, तो a जो है, a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t रेज टू 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4t क्यूब। तो इसको आप देख लो, यहां से आपको जो फाइनल आंसर है वो मिल जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 3b by 4a, 3b by 4a, और t स्क्वायर से कट के ये सिर्फ t बचेगा, तो t 4at। तो ये हो गया dy by dx। समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ओके, तो अब मैं ये लिख लीजिए आप, अब मैं आपको समझाता हूँ कि डबल डेरिवेटिव क्या होता है। सो वी हैव टेकन मेनी क्वेश्चंस हियर जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, आपके प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस करिए इसको बार बार, बारंबार। ठीक है, तो लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डबल डेरिवेटिव। ठीक है, डबल डेरिवेटिव क्या होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो देखिए, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि डबल डेरिवेटिव क्या होता है, और वो या डबल डिफरेंशिएशन, डबल डेरिवेटिव बोलो या डबल डिफरेंशिएशन बोलो। ठीक है, तो ये क्या होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे मानो कि हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्या फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमने अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, पहली बार, तो उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब इसका एक और नाम है, इसका नाम एक और है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया dy by dx इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव है उसको हम लोग बोल सकते हैं f डैश x। ठीक है, f डैश x, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार जो भी, जैसे मान लो कि ये x रेज टू 7 है, तो
तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा 7 इंटू एक्स रेज टू 6, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसी को आगे डिफरेंशिएट किया आपने, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे, फिर से इसको आगे डिफरेंशिएट करोगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका। तो ये क्या है, ये है फंक्शन, ये है फंक्शन का स्लोप, क्योंकि dy बाई dx स्लोप होता है, और ये है डेरिवेटिव ऑफ स्लोप, मतलब ये है डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, ये d और d यानी d रेज टू 2 हो जाएगा, ये dx और dx ये हो जाएगा dx का होल स्क्वायर। तो उसको होल नहीं करते, सिर्फ ऐसे लिखते हैं, तो ये ऐसा हो गया d2y बाई dx2, d2y बाई dx2। तो d2y मतलब d का स्क्वायर इंटू y, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो वो कितना आएगा, यानी वो सिंपल ऐसे इसका आगे का डेरिवेटिव, तो 7 6 42 हो जाएगा, 42 x रेज टू 5। इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, वेरी सिंपल। यानी पहला फंक्शन को जब पहली बार डिफरेंशिएट कर दो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसको अगर फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बस समझना ये कि ये जो है ये फंक्शन है, ये फंक्शन का स्लोप है dy बाई dx, और ये स्लोप का डेरिवेटिव है, यानी d बाई dx ऑफ dy बाई dx, d बाई dx ऑफ dy बाई dx, d बाई dx ऑफ dy बाई dx। तो d और d हो गया d रेज टू 2, तो d2y dx dx dx2, ये dx का होल स्क्वायर, बट वहां होल नहीं लगाते, तो d2y बाई dx2, ये इसका रिप्रेजेंटेशन, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आप खुद सोचो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, थर्ड भी हो सकता है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा। और एक और चीज, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं f डबल डैश x, ये भी ध्यान रखो। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग कहते हैं f डैश x, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग बोलते हैं f डबल डैश x। ठीक है, या d2y बाई dx2, ये इसके रिप्रेजेंटेशन है, d2y बाई dx2 या f डबल डैश x। ठीक है, अब यहाँ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करते हैं। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव, इसका जो ये आया इसका फिर डेरिवेटिव, यानी d बाई dx ऑफ d2y बाई dx2 का डेरिवेटिव, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d3y बाई dx3। ठीक है, मतलब इसका डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा f ट्रिपल डैश x, यानी 42 इंटू 5 कितना होता है भाई, 210, 40 पंचे 200, 210, तो ये हो गया 210x रेज टू 4। तो ये हो गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो, थर्ड का फोर्थ, फोर्थ का फिफ्थ। ठीक है, सो दिस इज डबल डेरिवेटिव। तो फिजिक्स में ये कहाँ यूज होता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, पहले इसको पॉज करिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स में इसका यूज किधर है। तो फिजिक्स में इसका यूज जनरली आएगा आपके फर्स्ट चैप्टर में, वो है रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन में इसका यूज आने वाला है, तो वहां पे जो है ये जैसे डिस्प्लेसमेंट, उसका डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो उस तरह से उसका यूज होता है। तो जैसे जो डिस्प्लेसमेंट है अपना, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट s। ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव निकाला आपने ds बाई dt, तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, FOD, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। या इसको आप बोल दो, मान लो कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ds बाई dt किया आपने, तो ये आ जाएगा आपका f डैश t, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, और ये है वेलोसिटी, ये क्या है वेलोसिटी यानी v। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, उसको हम f डैश t भी बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव, इसका, यानी d बाई dt ऑफ ds बाई dt, मतलब ये हो गया d बाई dt। अभी ds बाई dt क्या है, ds बाई dt v है, यानी dv बाई dt। तो ये है एक्सेलरेशन। ठीक है, ये क्या है एक्सेलरेशन। अब ये क्या है, ये है d2s बाई dt2। ठीक है, या मैं इसको बोल सकता हूँ f डबल डैश t, f डबल डैश t। ठीक है ओके, या मैं इसको बोलता हूँ dv बाई dt, ये एक्सेलरेशन। तो आप ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। मतलब बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, रेट ऑफ चेंज
विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। बस ये कहानी है, ये सिंपल सी कहानी है। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव देगा वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव देगा एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इसका डबल डेरिवेटिव है एस का, और ये एक्सेलरेशन v का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। बस हो गई ये कहानी, दैट्स ऑल। ठीक है, तो s को फर्स्ट और टाइम डिफरेंशिएट करेंगे v आएगा, v को डिफरेंशिएट करेंगे a आएगा, मतलब s को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो a आएगा, इसलिए s का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव a देगा, और v को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो a आएगा, तो v का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव a देगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। ओके, तो ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में यहां तक विल स्टॉप हियर। The next video will take the applications of derivatives, all right? So let's be ready for the next one. आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, all right? और अच्छे से इस वीडियो को बार बार देखिए, समझने की कोशिश करिए, all right? So जितने बार आप देखोगे समझोगे उतना ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। Okay? Bye.